नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं आलमी सहारा। वक्त हो गया है ख़बरनामे का। ख़बरनामा शुरू करने से पहले आइए देखते हैं आज की सुर्खियाँ। मूडा स्कैम को बताया सरकार को गैर मुस्तहकम करने की साजिश। एमसीडी स्टैंडिंग कमेटी के रुकन के इलेक्शन को आम आदमी पार्टी ने बताया गैर कानूनी। कहा चंडीगढ़ का वाकया दोहराने की कोशिश में है बीजेपी। मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी करेगी गुजरात का दौरा। वक्त तरमीमी बिल पर लोगों की राय का लेगी जायजा। केरल के एर्नाकुलम में सामने आया मंकी पॉक्स का दूसरा मामला। मुल्क में मरीजों की तादाद हुई 3। और इजराइल ने लेबनान में जंगबंदी की सिफारिश को किया मुस्तरद। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बड़े हमले की तैयारी। कर्नाटक के वजीर आला सिद्धरमैया ने मूडा स्कैम पर बयान दिया है। उन्होंने साफ कहा है कि वो इस्तीफा नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि ये उनकी सरकार को गैर मुस्तहकम करने की साजिश है। इधर कर्नाटक के वजीर आला सिद्धरमैया को मुबैना तौर पर करप्शन के मामले में फंसाने की कोशिश पर मुख्तलिफ लीडरान के जरिए मजम्मत का सिलसिला जारी है। शिवसेना यूबीटी के लीडर संजय राउत ने बीजेपी पर हमलावर होते हुए कहा कि पहले दिल्ली और झारखंड के वज़ीर आला को जेल में डाला गया और अब सिद्धरमैया के साथ यही किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि शुरुआत बीजेपी के वजीर आला बीएस येदियुरप्पा से करनी चाहिए थी। उन पर कौन से घोटालों के इल्जाम नहीं थे। बाद में सिद्धरमैया के साथ इंसाफ और नाइंसाफी की बात होगी। See, the law will take its own course. And Muda is that office is situated in Mysore. And whatever they want, the Muda people can take action. And it is not necessary that the government should respond it because it is an autonomous body, Muda. They can take action whether that whatever they have done is right or wrong. That is one thing. Another thing is why so much fuss is created for this small exchange of land. If you say, while doing exchange of land, if you say it is against law, you inquire it. Or if you think that it is valuable, then you can say you return that land. Instead of opting these options simply to defame a person, throw him to defame party also. They are doing all these things. And thirdly, Siddaramaiah, if he has committed individually or personally, then he is responsible. But he has not done anything somebody else has done. Even that during BJP's period, that has been worked out, and he is not party to that. So it is not fair often and often to defame him. And ultimately their aim is to defame the party. Therefore, I condemn such views and such efforts of the opposition party. It is very bad, and there is no question of resigning from the chief ministership post. Sir, second question, you see there is a FIR is expected today.
So what do you say about it, sir? No, the CM is very clear that he is open to investigation, and we have also set up an SIT, right, with one retired judge at the helm of affairs. BJP is more than free to go give any documents of any nature to them, and now that the Lokayukta is also in the loop, they are free to do that also. Instead of talking to the media, let them give all the documents that they have to the investigative agencies. Instead of having a trial in the media and trying to hang the CM for no fault of his, let them prove it. They're saying, BJP is saying, sir, FIR must be registered and he should resign. Well, see, FIR, whether it has to be registered or not, Lokayukta will take a call. They're an independent body. And whether the CM has to resign or the next steps for the CM will be decided by party. Who is BJP to tell us what to do? First, let them look inwards. What are the? Have they even bothered throwing Muniratna out of the party? Have they even bothered commenting about a sexual abuse case against a minor by the former Chief Minister Yediyurappa? Have they commented on that? Have they commented on the money laundering cases that are pending of Mr. Vijayendra? Then what moral rights do they have? जिस पार्टी में देश भर के भ्रष्टाचारियों को राजाश्रय मिलता है, राजाश्रय बोलते हैं हम, राजा ही आश्रय देता है भ्रष्टाचारियों को। ये पार्टी कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, इसलिए उनके मुख्यमंत्री के खिलाफ गवर्नर के दबाव, उसके ऊपर दबाव डालकर उनके ऊपर प्रोसिक्यूशन की बात करती है। ये गलत है। आपने मुख्यमंत्री को दिल्ली के जेल में डाला, आपने झारखंड के मुख्यमंत्री को जेल में डाला, जनता ने आपका बहुमत खींच लिया, फिर भी आप सुधर नहीं रहे हैं। ये कौन सी मस्ती है? कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी का बहुमत है सबसे ज्यादा। अगर ये है तो येडियुरप्पा को क्यों छोड़ा आपने? बीजेपी के जो मुख्यमंत्री थे येडियुरप्पा, उनके ऊपर कौन से केसेस आप देखिए ना, लैंड स्कैम है और स्कैम है, सभी स्कैम है उनके ऊपर। शुरुआत येडियुरप्पा से करनी चाहिए, बाद में वो धीरे धीरे आपको अगर चाहिए तो आप सिद्धरामैया के साथ ये न्याय अन्याय की बात कर सकते हो। कांग्रेस बन चुकी है भ्रष्टाचार की दुकान। अब ये पूर्ण तरीके से स्पष्ट है। मूडा स्कैम में हाईकोर्ट का ऑर्डर आया, चीफ मिनिस्टर इंडाइट हुए, फिर स्पेशल कोर्ट का ऑर्डर आया, एफआईआर फाइल करने के लिए कहा गया। इस्तीफा देने के बदले चीफ मिनिस्टर एक तो एरोगेंस दिखाते हैं, मीडिया के माइक को धक्का देते हैं, कहते हैं मैं इस्तीफा क्यों दूं, और अब सीबीआई को जो कंसेंट दिया जाता है स्टेट के द्वारा किसी भी मैटर को प्रोब करने के लिए, उसको विड्रॉ कर दिया गया है। मतलब चोर की दाढ़ी में तिनका। पहले चोरी और सीना चोरी, अब चोर की दाढ़ी में तिनका। मतलब सुनिए, मीडिया का अपमान, एससी समाज से आने वाले गवर्नर को धमकी और अपमान, और अब कैसे बचाए भ्रष्टाचार की दुकान, तो सीबीआई कंसेंट ही विड्रॉ कर दिया गया। ये जैसे फिंगरप्रिंट छोड़ता है ना कोई भी चोर या करप्ट आदमी, ये फिंगरप्रिंट है। ये दिखाता है कि कितना करप्शन किया है। इसका सारा का सारा ये एविडेंस है कि कैसे अपने आप को बचाने की कोशिश और कवायद की जा रही है। दिस इज द लास्ट टैक्टिक टू सेव देमसेल्व्स फ्रॉम द नूस ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑफ करप्शन। पर whoever has done corruption, उसे चुकाना तो पड़ेगा। करप्शन किया है तो प्राइस तो पे करनी पड़ेगी। राहुल गांधी को बताना चाहिए कि क्या वो कार्रवाई करने के लिए कहेंगे, क्या इस्तीफा लेंगे। कांग्रेस बन चुकी है भ्रष्टाचार की दुकान। मूडा स्कैम, वाल्मीकि स्कैम, एरोस्पेस स्कैम, राइस स्कैम, ट्रांसफर पोस्टिंग स्कैम, कर्नाटका में स्कैम ही स्कैम। और इसलिए तो पीएम ने भी कहा ना, जहां जहां कांग्रेस आई भ्रष्टाचार लूट मचाई। ये हरियाणा में भी अगर गलती से आ गए तो वहां पर भी लूट मचाएंगे। ये राजस्थान में थे, वहां पे लूट मचाते थे। ये कर्नाटका में लूट मचा रहे। हर जगह लूट लूट लूट, जमीन को लूटना, ये कांग्रेस का चरित्र है। दिल्ली में एमसीडी स्टैंडिंग कमेटी के इलेक्शन के लिए पोलिंग हुई है। आपने इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया, जबकि कांग्रेस कल ही इलेक्शन से बाहर रहने का ऐलान कर चुकी थी। पोलिंग एडिशनल कमिश्नर जितेंद्र यादव की मौजूदगी में हुई। उन्हें मेयर और डिप्टी मेयर की अद मौजूदगी में रिटर्निंग अफसर बनाया गया है।
एमसीडी में स्टैंडिंग कमेटी के रुकन के इंतखाब के लिए कुल 2.5 घंटे का वक्त दिया गया था, लेकिन इलेक्शन महज 1 घंटे में खत्म हो गया, क्योंकि सिर्फ बीजेपी के काउंसलरों ने ही वोटिंग में हिस्सा लिया। आम आदमी पार्टी के काउंसलरों ने इसका बायकॉट किया। कांग्रेस ने जुमेरात को ही इलेक्शन से दूर रहने का ऐलान कर दिया था। दिल्ली की मेयर शैली ओबराय ने एमसीडी कमिश्नर को 5 अक्टूबर को स्टैंडिंग कमेटी के छठे मेंबर के लिए इंतखाब कराने की हिदायत दी है। एलजी के हुक्म पर एमसीडी स्टैंडिंग कमेटी के अरकान के इलेक्शन पर दिल्ली के मेयर शैली ओबराय ने सख्त एतराज़ किया है। उन्होंने कहा कि जुमेरात की रात को एलजी के हुक्म पर कमिश्नर ने जुमे को एक स्टैंडिंग कमेटी के छठे रुकन का इंतखाब का जो हुक्म दिया है वो पूरी तरह से गैर कानूनी है। उन्होंने कहा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास किसी भी तरह का इख्तियार नहीं है कि वो हाउस की मीटिंग में मुदाखलत करें। कल रात को जो कमिश्नर द्वारा एक ऑर्डर जारी किया गया एलजी के निर्देश पे कि आज 1 बजे जो है स्टैंडिंग कमेटी के छठे मेंबर का चुनाव होगा। अगर हम डीएमसी एक्ट की बात करें, एमसीडी के हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात करें, तो वो ऑर्डर पूरी तरह से इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। डीएमसी एक्ट की रेगुलेशंस की धज्जियां उड़ाई गई है। अगर आप डीएमसी एक्ट का सेक्शन 74 पढ़िए, 76 पढ़िए, रेगुलेशन 23 पढ़िए, तो किसी भी प्रकार का जो एलजी के पास पावर नहीं है कि हाउस की मीटिंग के इंटरफेयर कर पाए। तो आज जो चुनाव होने वाला है हमारी नजर में पूरी तरह से इलीगल है। कल जब सदन 2 बार 3 बार एडजर्न किया और भारतीय जनता पार्टी ने उसी प्रकार से कल भी खलल डाली, कल भी जो इलेक्शन प्रोसीजर को है जो पहले दिन से बाधा डालने की कोशिश की वो कल भी जारी रही। कल मजबूरन मुझे सदन 5 तारीख तक स्थगित करना पड़ा। अगर हम लॉ की बात करें, एक्ट की बात करें, कानून की बात करें, तो जो लीगल चुनाव है वो 5 तारीख को ही होगा। आपने लेटर भी लिखा कमिश्नर को, क्या है उस लेटर में, उसके बारे में थोड़ा बताएं। देखिए, कमिश्नर एमसीडी को एक लेटर द्वारा निर्देश दे दिए गए हैं और बता दिया गया है कि जो कल रात को नोटिस ऑर्डर जारी हुआ है वो इलीगल है। इलेक्शन 5 तारीख को ही लीगल तरीके से होगा और मेयर होने के नाते मेरी भी जिम्मेदारी बनती है कि फेयर और ट्रांसपेरेंट तरीके से चुनाव हो, लॉ के हिसाब से चुनाव हो। तो आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को समझना होगा कि तानाशाही नगर निगम में इस प्रकार से नहीं चलेगी। भारतीय जनता पार्टी की ऐसी क्या मंशा है कि कल रातों रात इलेक्शन करवाने की कोशिश की गई और आज भी जो 1 बजे चुनाव की तारीख दी गई, जहां पर सदन में मेयर, डिप्टी मेयर या कोई सीनियर मोस्ट काउंसलर ही जो है सदन को प्रिसाइड कर सकता है, वहां पर किसी अधिकारी को लगाना सकती हैं और मेयर उसकी एमसीडी स्टैंडिंग कमेटी अरकान के इलेक्शन पर दिल्ली के साबिक वजीर आला और आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने तनकीद की है। उन्होंने कहा है कि एमसीडी के कानून में साफ लिखा है कि ऐवान का इजलास बुलाने का अख्तियार सिर्फ मेयर को है। एलजी या कमिश्नर ऐवान का इजलास नहीं बुला सकते हैं। जब इजलास होगा तब मेयर उसकी सदारत करेंगी। एमसीडी के कानून में साफ साफ लिखा है कि कॉरपोरेशन का सिटिंग बुलाने की, सदन की सिटिंग बुलाने का अधिकार केवल और केवल मेयर को है और किसी को नहीं है। एलजी साहब नहीं बुला सकते, कमिश्नर नहीं बुला सकते, केवल और केवल मेयर सदन का वो बुला सकती हैं और मेयर उसकी जब सदन होगा तो मेयर उसकी अध्यक्षता करेंगी। ये क्या है कि भाई एलजी साहब ने सदन बुला दिया और उसकी अध्यक्षता कोई ऑफिसर, कल को तो ये लोकसभा की अध्यक्षता कहेंगे कि होम सेक्रेटरी लोकसभा की अध्यक्षता करेगा। हम जनतंत्र में रहते हैं, हम डेमोक्रेसी में रहते हैं। दूसरा, कानून में लिखा है कि जब भी सदन बुलाया जाएगा 72 घंटे का उसमें समय दिया जाएगा। कोई काउंसलर बाहर चला गया, कोई काउंसलर अवेलेबल नहीं है, सबको टाइम की जरूरत होती है। ये क्या रातों रात, तो इनकी नीयत में खोट नजर आ रहा है, कुछ ना कुछ गड़बड़ करने की इनकी साजिश नजर आ रही है, जिस वजह से ये ताबड़तोड़ ये लगे हुए हैं। अभी मेरे को पता चला है मेयर ने शायद चिट्ठी लिखी है कमिश्नर को, उन्होंने आज होने वाले चुनाव को गैर कानूनी और असंवैधानिक घोषित कर दिया है और कमिश्नर को कहा है कि आज का चुनाव न कराया जाए। वक्त तरमीमी बिल की ज़रूरत का तज्जिया करने के लिए तश्कील दी गई मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी गुजरात का दौरा करेगी। इस दौरान अहमदाबाद में गुजरात रियासती वक्फ बोर्ड और गुजरात सरकार कमेटी के सामने अपनी सिफारिशात पेश करेंगे और किसी नतीजे पर पहुंचने के लिए तबादला ख्याल करेंगे।
हरियाणा कांग्रेस ने 13 लोगों को पार्टी से 6 साल के लिए निकाल दिया है। पार्टी का कहना है कि ये लीडर पार्टी उम्मीदवारों के खिलाफ असेंबली इलेक्शन लड़कर पार्टी मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्वस पाए गए थे। ऐसी चीज निकली नहीं है जो कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी के शौहर रॉबर्ट वाड्रा ने वजीर-ए-आजम मोदी को चैलेंज करते हुए कहा है कि मोदी साबित करें कि उनकी कोई जमीन हरियाणा में है या उन्होंने कोई गलत काम किया है। वाड्रा ने कहा है कि मोदी साबित नहीं कर सकते क्योंकि मैंने कोई गलत काम नहीं किया है। वाज़ेह है कि हरियाणा असेंबली इलेक्शन के बीच नरेंद्र मोदी ने रॉबर्ट वाड्रा और भूपेंद्र हुड्डा पर निशाना लगाया था। रॉबर्ट वाड्रा ने कहा है कि वजीर-ए-आजम अपनी तकरीरों में उनका नाम लेते हैं। 10 साल से मोदी की सरकार है, उन्होंने तमाम एजेंसियां लगाई, तमाम तरीके अपनाए, कोई नतीजा नहीं निकला। कांग्रेस ने हरियाणा को दलालों और दामादों के हवाले कर दिया था। दलालों और दामादों से बचना है तो कमल ही बचाएगा। मैं ज़रूर हैरान था कि जब मैंने प्रधानमंत्री जी को अपने भाषण देने में हरियाणा में जब वो प्रचार कर रहे थे और अपने भाषण दिया उन्होंने उसमें मेरा नाम जिक्र किया दोबारा से और उनकी सरकार 10 साल रही है। चाहे जितने भी RTI हो और अलग अलग तरीके उन्होंने अपनाए हैं मेरे ऊपर कुछ बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाने के लिए और कभी भी कोई ऐसी चीज़ निकली नहीं है जो गलत निकली हो मेरे कामकाज में या कोई भी ऐसी ज़मीन का हमने कोई भी ऐसे ट्रांजैक्शन किया हो जो कानून के तरीके से ना हुई हो। और मैं फिर से हैरान हूँ कि हर जहाँ भी रैली में जाते हैं वो मेरा नाम फिर से गलत इस्तेमाल करते हैं, जिस तरीके से दामादों के लिए या ऐसे कुछ दलालों के लिए ऐसे कुछ बात करते हैं। तो ज़रूर मैं हैरान हूँ। प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री जी का जो पद होता है वो देश के लिए प्रगति के लिए होता है और ज़रूर कानून के तरीके से वो जो भी अपने इल्ज़ाम लगाना चाहे या जो भी कानून की तरीके इस्तेमाल करने चाहे वो सही रहेगा। और जब उन्होंने 10 साल से किया और कोई नतीजा निकला नहीं है, चाहे वो RTI किए हैं जिसमें एक भी मेरे कंपनी के नाम में ज़मीन हरियाणा में नहीं है। और तो मैं हैरान था कि फिर से अपनी जो उनकी नाकामियां हैं उसको छुपाने के लिए रॉबर्ट वाड्रा, मेरा नाम, दामाद और अलग अलग चीज़ें उन्होंने इस्तेमाल की कि सारा कुछ कि दामादों को दिया। मेरे कंपनियों में किसी भी कंपनियों में हरियाणा में कोई भी ज़मीन नहीं है, RTI हो। और मैं खुलेआम बोल रहा हूँ, चेतावनी देता हूँ पूरे BJP को कि वो प्रूव करें कि अगर मेरे पास कोई भी ज़मीन हरियाणा में हो और कभी भी कोई भी अगर जो मेरा ट्रांजैक्शन है कभी भी कोई गलत निकला हो। उन्होंने चाहे ED का इस्तेमाल किया, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का इस्तेमाल किया और कई नोटिस मिले हैं। और जब भी कमीशन भी क्रिएट की, उन्होंने ढींगरा कमीशन क्रिएट किया, उसमें भी कोई भी चीज़ ऐसे निकली नहीं। ना उन्होंने पब्लिक में दिया कि हमें जितनी भी हमने अपनी कमीशन लगाए और हमने अपनी कार्रवाई की, कोई भी गलत चीज़ मेरे नाम से नहीं हुई है और मिलेगी भी नहीं, क्योंकि कभी हमने कोई गलत तरीका अपनाया नहीं। और हमने कभी भी कोई भी, चाहे हमारी सरकार कहीं भी हो, मैं किसी सरकार का इस्तेमाल नहीं करता हूं अपने कामकाज में। केरल में दूसरा मंकी पॉक्स का एक और मामला सामने आया है। रियासत के एर्नाकुलम इलाके के एक साकिन की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। मरीज को हॉस्पिटल में आइसोलेट किया गया है और इलाज चल रहा है। केरल में मंकी पॉक्स का दूसरा मरीज मिला है, जबकि मुल्क में यह तीसरा मामला है। ज़राए के मुताबिक अभी तक इस मामले में स्ट्रेन का पता नहीं चल पाया है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 3 दिन से लापता 5 साला बच्ची को रेप के बाद कत्ल कर दिया गया और उसकी लाश पानी की टंकी में छुपा दी गई। फॉगिंग के दौरान धुएं का फायदा उठाकर मुलजिम ने बच्ची को फ्लैट में खींच लिया, उसका रेप किया और फिर गला घोंटकर उसे जान से मार दिया। इस मामले में मुलजिम अतुल भालसे के अलावा उसकी मां बसंती और बहन चंचल को वारदात छुपाने के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया है।
तमिलनाडु के वजीर आला M.K. स्टालिन ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। मुलाकात के बाद उन्होंने कहा है कि उन्होंने पीएम मोदी से 3 अहम मुतालबात किए हैं, जिनमें ये मुतालबा भी शामिल है कि चेन्नई मेट्रो के दूसरे मरहले को भी उसी तरह लागू किया जाए जिस तरह मरकज और रियासती सरकारों ने मिलकर चेन्नई मेट्रो के पहले मरहले को लागू किया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर और गांदरबल और बडगाम हल्के से असेंबली के उम्मीदवार उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में आकर वजीर आजम और वजीर दाखिला पाकिस्तान को क्लीन चिट देते हैं तो उससे बातचीत क्यों नहीं करते हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी मुल्क के बाकी हिस्सों में अलग बात करती है और जम्मू कश्मीर में अलग बात करती है। लेकिन अब आप जम्मू कश्मीर में तो उनको दोषी ठहराते ही नहीं हो ना। जम्मू कश्मीर में आके पाकिस्तान को क्लीन चिट दिया जाता है। जम्मू कश्मीर में आके होम मिनिस्टर साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब पाकिस्तान को क्लीन चिट देते हैं। अगर यहां से अगर आपने पाकिस्तान को क्लीन चिट दिया है तो आप बातचीत क्यों नहीं कर रहे हो? या तो फिर हम जिम्मेदार हैं नहीं ना, या तो फिर पाकिस्तान जिम्मेदार है। फिर ठीक है, जो आपने करना आप करिए, लेकिन मुल्क के बाकी हिस्सों में आप एक बात करते हैं, जम्मू कश्मीर में आके आप दूसरी बात करते हैं। कम से कम हम वो लोग हैं, चाहे हम कश्मीर में बात करें, जम्मू में बात करें या जम्मू कश्मीर के बाहर बात करें, हम एक ही बात करते हैं ना। बीजेपी की तरह हम अलग अलग जबान में बात नहीं करते। लास्ट में ये पूछूंगा कि लगातार जो बीजेपी आप पे हमले करती है, लगातार जो उनके बड़े नेता आते हैं वो आप पे हमले करते हैं, क्या लगता है कि उनकी बात है जहां आपसे डरे हुए हैं? जो पहले 2 फेज इलेक्शन के रहे हैं, बीजेपी की परफॉर्मेंस कुछ खास रही नहीं। वो घबराए हुए हैं। हमारे इंटरनल रिपोर्ट्स के मुताबिक नौशहरा से भी उनका जो स्टेट प्रेसिडेंट है वो शायद अपनी सीट बचा नहीं पाएगा। ऐसे हालात में जाहिर सी बात है कि बीजेपी हमें जो है निशाना बना रही है। ठीक है, जितना वो हमें निशाना बनाना चाहे उनकी करें। मैनिफेस्टो को लेके बार बार भाजपा जो है कटाक्ष कर रही है। अब आप क्या उम्मीद करोगे कि वो हमारे मैनिफेस्टो को जो है उसकी सराहना करेंगे? हमारे खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे हैं ना, वो तो जाहिर सी बात है कि हमारे मैनिफेस्टो की मुखालफत करेंगे। और मैं तो इस बात से मैं खुश हूं और मैं उनका शुक्रिया करना चाहता हूं कि हम मतलब एक छोटी पार्टी, जम्मू कश्मीर के बाहर हमारा कुछ है नहीं, हमारे मैनिफेस्टो को तो पूरे मुल्क में चर्चा का विषय बनाया हुआ है। और शायद ही कोई बीजेपी का यूनियन मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर ऐसा नहीं है जिसने हमारे मैनिफेस्टो के हवाले से बात ना की हो। तो मैं बीजेपी का बेहद शुक्रगुजार हूं। उमर साहब, काफी टारगेट किया जाता है आपको, काफी स्पीच में नाम लिया जाता है, चाहे वो होम मिनिस्टर हो चाहे प्रधानमंत्री हो। क्या कहना चाहेंगे कि वो कहते हैं ना, कुछ तो है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। ठीक है ना, अब ये भी अब इतने साल हुकूमत से बाहर रहने के बाद भी अगर वजीर आजम साहब, होम मिनिस्टर साहब मुझे याद करते हैं तो कुछ तो मैंने ठीक किया होगा। असेसमेंट करवा लेते हैं। दिल्ली के साबिक वजीर आला और आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने नई वजीर आला आतिशी से पीडब्ल्यूडी के तहत आने वाली सभी सड़कों को जायजा लेने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि हम अपने सभी वज़रा और अरकान असेंबली को सड़क पर उतार कर जायजा लेंगे और जो सड़कें टूटी हुई हैं आने वाले कुछ महीनों के अंदर उन सभी को तेजी से मरम्मत करवाएंगे। उन्होंने कहा कि मेरे जेल भेज दिए जाने की वजह से बहुत से काम रोक दिए गए थे, लेकिन मैं आवाम को यकीन दिलाता हूँ कि अब सभी रुके हुए कामों को जल्द पूरा किया जाएगा। आतिशी जी के साथ डीयू में गया था, वहाँ पे भी सड़क टूटी हुई थी और आज इस सड़क पे आए हैं। तो मैं आतिशी जी से यही निवेदन करूंगा कि पूरी दिल्ली में पीडब्ल्यूडी की जितनी सड़कें हैं, इन सारी सड़कों का एक तुरंत अगले 3-4 दिन में एक असेसमेंट करवा लेते हैं। अब हम अपने सारे विधायकों को, सारे मंत्रियों को सड़क पे उतार के एक असेसमेंट कर लेंगे। जो सड़कें टूटी हुई हैं आने वाले कुछ महीनों के अंदर उन सारी सड़कों की युद्ध स्तर के ऊपर रिपेयर हम शुरू कराएंगे ताकि दिल्ली के लोगों को दिक्कत ना हो। मैं जेल चला गया था, इस वजह से काफी काम इन लोगों ने रोक दिए, लेकिन जनता को मैं आश्वासन देना चाहता हूं कि मैं आ गया हूं। जितने रुके हुए काम थे सारे काम अब दोबारा चालू कराएंगे।
त्योहारों के आइंदा सीजन के पेश नज़र रेलवे ने खुसूसी ट्रेन चलाने और कुछ गाड़ियों में डिब्बे बढ़ाने का फैसला किया है। रेलवे के वजीर अश्वनी वैष्णव ने कहा कि आने वाले त्योहारों के पेश नज़र 108 ट्रेनों में जनरल कोच बढ़ाए गए हैं। छठ पूजा और दिवाली स्पेशल ट्रेनों के लिए 12,500 कोच मंजूर किए गए हैं। 2024-25 में कुल 5,975 ट्रेनें नोटिफाई की गई हैं। इससे 1 करोड़ से ज्यादा मुसाफिरों को पूजा की भीड़ के दौरान घर जाने की सहूलत मिलेगी। 2023-24 में त्योहारी सीजन के दौरान कुल 4,429 स्पेशल ट्रेनें चलाई गई थीं। इजराइल ने लेबनान में 21 दिन जंगबंदी की सिफारिश को खारिज कर दिया है। इजराइल के सख्तगीर वजीर मालियात बजेल स्मोट्रिच ने जंगबंदी की तजवीज़ को खारिज करते हुए लेबनान की मुसल्लह तंजीम हिजबुल्लाह को कुचलने का ऐलान किया है। उन्होंने ट्विटर पर कहा कि शिमाल में मुहिम का नतीजा सिर्फ हिजबुल्लाह को कुचलना और उसकी सलाहियतों को ख़त्म करना होना चाहिए। हम आपको बता दें कि बुध की देर रात अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, सऊदी अरब, कतर, मुत्तहिदा अरब अमारात और कुछ दीगर खलीफ मुल्कों ने इजराइल लेबनान सरहद पर 21 दिन के फौरी जंगबंदी की अपील की थी। इजराइल की राजधानी तेल अवीव पर हौसियों ने बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया है। इस दौरान लोगों में खौफ व हिरास फैल गया। तो आज के खबरनामे बस इतना ही। दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए आलमी सहारा।